अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के EVSC का चैप्टर नंबर 10 अब्दुल इन द गार्डन। प्यारे बच्चों, गार्डन का मतलब होता है बाग, बगीचा, जहाँ पे पौधे होते हैं, फूल होते हैं। और इसमें एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल है, छोटा लड़का जो अपने बगीचे में है। वो क्या कर रहा है अपने बगीचे में, ये हमें पढ़ना है। It was a holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. He found that it was not easy to pull out even the small grass. His hands became red by the effort. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant climber. The delicate stem of the pea plant broke. Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out." Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more separate out than the part of the plant above the ground. ये छुट्टियों का वक्त था। अब्दुल गार्डन में अपने अबू की मदद कर रहा था। उसके अबू जो है वो गार्डन में सब्जियों के बीच से सूखे पत्ते और घास निकाल रहा था। अब्दुल भी अब घास निकालने लगा। जब वो घास निकाल ही रहा था, उसने ये पाया कि छोटे साइज का घास निकालना भी काफ़ी मुश्किल था। उसके हाथ लाल हो गए थे ये काम करते करते। तो जब वो ट्राई कर रहा था घास को निकालना, तो गलती से उसने वो स्टिक तोड़ दी, जिसकी वजह से पी प्लांट खड़ा था। क्योंकि पी प्लांट एक क्लाइंबर है, इसी वजह से उससे ज़रूरत पड़ती है किसी सपोर्ट की, ताकि ये खड़ा रह सके। जब ये स्टिक टूट गई तो पी प्लांट का नाजुक स्टेम भी टूट गया। तो उसके अबू ने उससे बोला कि तुम क्या घास निकाल रहे हो? इनके रूट्स बहुत मजबूत हैं, पहले इसके इर्द गिर्द ज़मीन खोद के बाहर निकालो। जब अब्दुल ने ज़मीन खोदी, घास बाहर निकाला, तो उसने देखा कि रूट्स जो है उन्होंने प्लांट से ज़्यादा जगह ले ली थी, मतलब ज़्यादा जगह पे फैले हुए थे। After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? Abu remembered that he had to send some radish mully home. He started to pull the radish out of the soil. Abdul wondered whether these were also roots. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. Both of them picked up the radish and ran. They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard was broken and fell. In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. Despite the strong wind, the trees remained firm on the ground. They both sat down to have tea with Ami. Abu said to Abdul, "The plants were getting dried. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and प्ले लूडो।" तो बच्चों, फिर क्या होता है, घास निकालने के बाद अब्दुल के अबू को याद आया कि उससे घर कुछ मूलियाँ बेचनी हैं। तो अब वो ज़मीन से मूलियाँ निकालने लगा। जब अब्दुल ने ये देखा तो उसने सोचा कि क्या ये रूट्स हैं, क्योंकि ये तो ज़मीन के नीचे से निकले हैं। अचानक तेज़ हवा और बारिश हुई और अब्दुल के अबू कुछ ही मूलियाँ निकाल पाए और घर चले गए। अभी वो घर के अंदर जा ही रहे थे कि नीम के दरख्त की शाख टूट के गिर गई और अबू जो है वो बाल बाल बच गए। इतनी तेज़ हवा होने के बाद भी नीम का दरख्त नहीं गिरा। अब दोनों बैठ के अम्मी के साथ चाय पीने लगे। तो अबू ने अब्दुल से कहा कि प्लांट जो हैं वो सूखे पड़ रहे थे, चूँकि अब बारिश पड़ गई, अब हमें इससे पानी नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम बैठ के लूडो खेलते हैं। Nowadays, Abdul keeps thinking about all kinds of plants that he sees. Abdul saw a plant growing out of a wall in school. He wondered, how deep must the roots of this plant be going? How do the roots get water? How big
will this plant grow? What will happen to the wall? Can you give the names of the plant in the picture? Have you ever seen a plant growing from a crack in a wall? Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. He could see some of its broken roots. Abdul thought, would someone have uprooted such a big tree, or would it have fallen on its own? How old would this tree be? Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rain water? तो बच्चों आजकल अब्दुल जो है वो प्लांट्स के बारे में ही सोचता रहता है। अब्दुल ने अपने स्कूल की दीवार पर एक प्लांट देखा और सोचने लगा कि इसके रूट्स कितने डीप होंगे। ये रूट पानी के कहाँ से लाते होंगे। ये प्लांट कितना बड़ा होगा। इस दीवार का क्या होगा। इसी तरह उसने रोड पे एक पड़ा हुआ ट्री देखा जिससे उसको नीम ट्री की याद आई जो उसके सहन में था, क्योंकि ये ट्री नीचे पड़ा हुआ था और उसके रूट्स भी दिख रहे थे। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि क्या इस ट्री को किसी ने उखाड़ा होगा या फिर ये खुद ही गिर गया है। ये ट्री कितने साल पुराना होगा। और अब्दुल ने एक ट्री देखा जो सीमेंटेड ग्राउंड पे था। उसने सोचा कि इससे रेन वाटर कैसे मिलता होगा। अब हम पढ़ेंगे अनयूजुअल रूट्स के बारे में। Have you swung from a banyan tree? What did you hold to swing? What looks like the hanging branches are carefully the roots of the tree. These grow down from the branches until they reach the ground. These roots are like pillars that provide strong support to the tree. The banyan tree also has roots under the ground just as other trees have. प्यारे बच्चों, एक ट्री होता है जिसको बनियान ट्री कहते हैं। उसके जो रूट्स होते हैं वो उसके ब्रांचेस जैसे लगते हैं। ये जो रूट्स होते हैं ये सपोर्ट देते हैं बनियान ट्री को। इसके अलावा बनियान ट्री के रूट्स ग्राउंड के नीचे भी होते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाई गया है। आप गौर से देखिए। डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो डेजर्ट ओक इज a tree that is found in Australia. It grows almost as tall as your classroom wall. It has very few leaves. Guess how deep its roots go down. Imagine the length of about 30 such trees laid down in a line end to end, one after other. That is how long the roots of this tree can be. These roots go deep into the ground till they reach water. This water is stored in the tree trunk. Local people knew about this. When there was no water in the desert, the local people used to put a tin pipe into the trunk of the tree to drink this water. तो बच्चों, डेजर्ट ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी हाइट एक दीवार जितनी होती है। इसके कम पत्ते होते हैं और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी हाइट का 30 गुना इसके रूट्स डीप होते हैं। मतलब कि अगर एक के बाद एक दीवार जितने लंबे 30 ट्रीज रखेंगे तो इतने ही डीप एक ट्री के रूट्स होंगे। तो देखो कितने लंबे रूट्स होते हैं इसके रूट्स तब तक ज़मीन के नीचे जाते हैं जब तक ना इन्हें कहीं पानी मिले। जब डेजर्ट में पानी की कमी होती है तब वहाँ के लोगों ने इस ट्री को पाइप लगा के इस ट्री के ट्रंक से पानी निकाला था। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें ये सबक लेना चाहिए कि ट्रीज़ हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ उगाने चाहिए। बाकी वस्सलाम।